Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are starting our lecture number 2 for class pre-9th, which is from chapter number 1 physical quantities and measurements. Now we discuss topic number 1.3 international system of units. With the developments in the field of science and technology, the need for a commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world, particularly to एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन. स्टूडेंट्स, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई साइंस में, तो पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने के लिए सोचा गया जिसमें आपके पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड्स रूल्स बना दिए जाए. मींस कि आपके पास उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो यूनिट्स हों पूरे वर्ल्ड में वही यूनिट्स यूज़ हो रहे हों. जैसे कि मैथ्स का यूनिट केजी है, तो आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में चले जाएं, वहाँ पे मैथ्स का यूनिट अगेन केजी ही रहता है. लेंथ इन मीटर्स ही मेजर होती है. तो दी स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए सोचा गया. इन स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स हेल्ड इन पेरिस इन 1960 अडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इनको जो मेजरमेंट्स को जो रूल्स उन्होंने डेवलप किए 1960 में पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये डेवलप किए गए. उस कॉन्फ्रेंस को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नेम दिया गया. द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज commonly referred as SI, System International. This SI is for System International. Now we discuss base units. As we discussed earlier, the base quantities, the quantities with the help of which we derived other quantities are called base quantities. So the units which describe completely the base quantities are called base unit. The unit that describes base quantities are called base units. Each base quantity has its SI unit, System International units. Here is the table in which we show the base units. Length is a base quantity. Its symbol is L. Length is represented by capital L. Its unit name is meter, and meter is represented by small m. Second is mass. Mass is represented by small m, and its unit is kilogram. Kilogram is represented by kg. Time is represented by capital small t. Its unit is second, and second is represented by small s. Electric current, which is represented by I, its unit is ampere, and ampere is represented by capital A. Next, intensity of light. Intensity of light is represented by capital L, which unit is candela, and candela is represented by small c and d. Next is temperature. Temperature is represented by capital T. Time is represented by small t, but temperature is represented by capital T. Its unit is Kelvin, and Kelvin is represented by capital K. Amount of substance, which is represented by the symbol small n, and its unit is mole, whose symbol is mole. MOL is represented by mole. Here is derived units. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. वो क्वांटिटीज़ जो हम बेस क्वांटिटीज़ पे बेसिकली उनको डिपेंड कर रही होती हैं. हम बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव क्वांटिटीज़ को ड्राइव करते हैं, तो हमारे पास वो यूनिट्स जो ड्राइव क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं उनको ड्राइव यूनिट्स कहा जाता है. द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड derived units. Derived units are defined in terms of base units and are obtained by multiplying or dividing one or more base units with each other. इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें वो आपको ये कह रहा है कि देखिए, जिस तरह हम लोग लेट एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास एरिया है, एरिया का यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है. तो पहले हम एरिया का फार्मूला चेक करते हैं. एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ. लेंथ भी हमारे पास मीटर्स में होती है, जबकि विड्थ भी अगेन मीटर्स में होती है. अब मीटर हमारे पास एक बेस यूनिट होता है, लेकिन इन दो बेस यूनिट को, लेंथ का भी बेस में यूनिट मीटर मल्टीप्लाई बाय विड्थ का यूनिट भी मीटर्स, इन दोनों बेस यूनिट्स को जिस टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मीटर स्क्वायर आ जाता है. मीटर स्क्वायर इज नॉट अ बेस यूनिट, इट इज अ ड्राइव्ड यूनिट ऑफ एरिया. इसी तरह हम वॉल्यूम को जिस टाइम डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम के लिए हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. तो हमारे पास जिस टाइम हम लेंथ का यूनिट मीटर, विड्थ का यूनिट अगेन मीटर, एंड हाइट इज आल्सो इन मीटर्स. नाउ वी मल्टीप्लाई दीज 3 meters and get meter cube for the unit of volume. Meter cube is not a base unit, it is a derived unit, but the unit involved to derive it is meters, which is a base unit. Means ये हुआ कि हम base units को use करके derived units बना सकते हैं, जिस तरह हम base quantities को use करके derived quantities को further produce कर सकते थे. नाउ इस टेबल में आप देख सकते हैं कि उन्होंने स्पीड का आपको बताया. स्पीड आपके पास रिप्रेजेंट की जाती है v से. इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं मीटर सेकंड -1 से. पर सेकंड को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो दिस -1 से किया जाता है.
देन अगेन एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ए से, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। पर सेकंड भी आप बोल सकते हैं या मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसको बोला जा सकता है। अगेन मीटर इज सेम एंड सेकंड पर सेकंड स्क्वायर है तो मीन सेकंड पावर -2। देन अगेन फोर्स इज मीटर्स इन वॉल्यूम हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स न्यूटन्स में मेजर की जाती है, इसको रिप्रेजेंट एफ से किया जाता है और न्यूटन हमारे पास इक्वल टू होता है केजी मीटर सेकंड -2। ये केजी मीटर सेकंड -2 क्यों होता है हमारे पास? क्योंकि हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है m इंटू ए। m is measured in m is mass and measured in kgs, that's why unit of mass and acceleration यहाँ पे जैसे हमने देखा मीटर सेकंड -2 तो एक्सेलरेशन का यूनिट इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। kg मीटर सेकंड -2 इज द यूनिट ऑफ फोर्स और इसको हम एक और नेम भी दे सकते हैं विच इज न्यूटन। प्रेशर का यूनिट आपको बताया गया है पास्कल्स। अगेन डेंसिटी का यूनिट आपको बताया गया है केजी मीटर -3। ये तमाम यूनिट्स आपके पास फार्मूला से ड्राइव हो सकते हैं। जिस टाइम आपके पास डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम तो मैस का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो पर यूनिट वॉल्यूम है तो मीटर -3 आ जाता है। इसी तरह चार्ज का यूनिट कूलम और इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्विक क्विज आप देख सकते हैं, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ को आप बता सकते हैं कि वो क्वांटिटीज़ जो किसी अदर क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करती वो बेस क्वांटिटीज़ कहलाई जाती हैं। 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं आपके पास बेसिकली, और ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिनको जो डिपेंडेंट होती है ऑन बेस क्वांटिटीज़ उनको ड्राइव क्वांटिटीज़ कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। इन सब में से बेस क्वांटिटी कौन सी है? तो आपके पास डिस्टेंस इज अ बेस क्वांटिटीज़ बिकॉज फोर्स, एरिया एंड स्पीड दीज 3 आर ड्राइव क्वांटिटीज़। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़। तो डेंसिटी आपके पास ड्राइव क्वांटिटी है, फोर्स भी ड्राइव क्वांटिटी है, मैस आपके पास बेस क्वांटिटी है, स्पीड आपके पास ड्राइव क्वांटिटी है, टाइम बेस क्वांटिटी है, लेंथ भी बेस क्वांटिटी है, टेम्परेचर भी बेस है एंड वॉल्यूम इज अगेन ड्राइव क्वांटिटी। नाउ वी डिस्कस प्रीफिक्सेस। सम ऑफ द प्रीफिक्सेस आर आइदर वेरी लार्ज क्वांटिटीज आर आइदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा लार्ज हो सकती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं। उन क्वांटिटीज़ को हमें एक्सप्रेस करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, उसके लिए हम प्रीफिक्सेस को यूज़ किया जाता है। प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स और लेटर्स होते हैं जिनको हम यूनिट से पहले ऐड करते हैं उस क्वांटिटी में। जैसा कि ये टेबल 1.3 में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे आपके पास सेंटी की पावर होती है। सेंटी इज़ अ प्रीफिक्स हुज पावर इज 10⁻⁻², डेसी इज -1, डेका इज +1, हेक्टो इज +2, किलो इज 10⁻3, मेगा इज 10⁻6। इसी तरह ये सारी पावर्स हैं। माइक्रो इज 10⁻⁻9, 6 नैनो इज -9, पीको इज -12, फेमटो इज -15 एंड एटो इज -18। अब आप अपने लेक्चर्स पे आते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल डिवाइड 20,000 बाई 1,000 टू एक्सप्रेस इनटू किलोग्राम। ये देख सकते हैं आपके पास 20,000 ग्राम्स है। अब ये 3 जीरोस 10⁻³ बना रहे होते हैं। मीन्स कि अगर यहाँ पे हम इसके साथ 1 भी लगा दें तो वो हमारे पास 10⁻³ इक्वल टू 1000 होता है और 1 मल्टीप्लाई बाई अगेन दिस 2 अगेन हमारे पास यही 20,000 ग्राम्स आता है। तो इन 3 जीरोस की जगह पे अगर हम अपना प्रीफिक्स यूज़ करें, कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करें? किलो वाला, क्योंकि किलो की पावर होती है 10⁻3। तो इन 3 जीरोस की जगह पे हमारे पास ये 10⁻³ आ गया, 20 उसी तरह साथ रहा। अब ये 10⁻³ जो प्रीफिक्स हमने यूज़ किया इसका नेम क्या है? किलो। तो हम इसके साथ ये किलो हमने प्रीफिक्स पुट कर दिया। इसी तरह इन एग्जाम्पल्स में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इन 3 जीरोस की जगह पे हम 10⁻³ लेके आए। 200 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, 10⁻³ की जगह पे अगेन हमने दिस किलो यूज़ किया और मीटर सेकंड -1 उसी तरह रिमेन सेम रहा। देन इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इन 3 जीरोस की जगह पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10⁻³ पुट करते हैं, देन हम 4 के बाद पॉइंट लगाते हैं। अब पॉइंट के बाद हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं तो ये 3 वैल्यूज़ भी 10⁻³ में ऐड हो जाएंगी। तो मीन्स ये हुआ कि 4.8 इंटू 10⁻³ फॉर दीज 3 जीरोस एंड पॉइंट के बाद हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पे हमने 4.8 किया तो 1, 8, 2, 3 ये 3 वैल्यूज़ भी 10⁻³, 10⁻³ 10⁻³ अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड कर दी जाती हैं। तो 4.8 इंटू 10⁻6 वाट और 10⁻6 इस आप अगर देखें तो यहाँ पे मेगा की पावर है 10⁻6 तो 10⁻6 की जगह पे हम मेगा पुट कर देंगे। इसी तरह एक हम इसको देख लेते हैं जो हमारे पास नेगेटिव पावर्स में जा रही है। 5th एग्जाम्पल। अब इसमें आप जीरोस कैलकुलेट कर लें।
इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास ये 3 जीरोज, दीज 3 जीरोज, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को हम, ये 3 जीरोज, जिस टाइम पॉइंट को हम लेफ्ट टू राइट मूव करवा रहे होते हैं तो हम माइनस की पावर्स में जाते हैं। तो ये पॉइंट हमने मूव करवाया इस जगह पे जहाँ पे आपको कर्सर शो हो रहा होगा, तो ये 0.0081 बन गया। अब जितने पॉइंट्स हमने, मीन्स जितने जीरोज हमने फर्दर पॉइंट को मूव करवाया, उन जीरोज को काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 एंड 6, मीन्स दिस इज 10 रेज टू पावर -6, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पॉइंट को। तो 0.0081 इंटू 10 रेज टू पावर -6 मीटर्स। अब इस पॉइंट को अगर हम फर्दर 8 के साथ मूव कर दें, 8.1 कर दें, तो सेंटर में हमने कितनी वैल्यूज़ को पास आउट किया, 8, 1, 2 एंड 3, दीज 3 वैल्यूज आर आल्सो ऐड इन दिस। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड कर दी जाती हैं। 10 रेज टू पावर -6, 10 रेज टू पावर -3, तो 8.1, 10 रेज टू पावर -3। इस पॉइंट को अगेन हम 8 के बाद लेके आए, तो यहाँ पे सेंटर में 3 वैल्यूज हैं आपके पास, दैट्स वाई हमने 10 रेज टू पावर -3 भी इसमें ऐड किया, तो -6 और -3, 10 रेज टू पावर -1। और इस टेबल से आप देख सकते हैं कि 10 रेज टू पावर -9 इज नैनो, नैनो इज रिप्रेजेंटेड बाय 10 रेज टू पावर -9, तो हम इस 10 रेज टू पावर -9 के साथ नैनोमीटर। दैट्स एंड स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक, आस्क इट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।